In this video, I will let you know how to attempt class 10 mathematics board paper, how errors can be reduced, and finally, I will discuss solutions of pre-board 3 conducted by RN classes. This year, class 10 board paper is on a new and challenging format. In all, there will be 38 questions, out of which last 3 are case studies questions with 3 subparts each. So in all, 44 parts or 44 questions. Means paper is on lengthier side. These 38 questions further divided into 5 sections: section A, section B, C, D and E. Section A or part A contains 20 questions of single answer MCQs nature, out of which 2 are of assertion reason type. For the first time they added this type in the board. Again, a very, very important thing. Part B contains 5 very short answer type subjective questions of 2 marks each. Then part C contains 6 short answer type questions of 3 marks each. Then part D contains 4 5 marks questions of long answer type. And finally, part E contains 3 case studies questions of 4 marks each. And each of these case study questions may have at the most 3 subparts. An important aspect of class 10 board paper is you are going to get 15 minutes reading time. Your output will strictly depend upon how you use this time for the betterment of your solutions. So, how to use this 15 minutes? Majority of the questions in board paper are of easy and average nature. Just by reading the question, you will come to know what is the solution of the problem. But board says 18 marks questions comes under the category of analysis and creativity. Here they can ask some good level questions. So how to read a good level question? If there is a good level question, first read the question carefully, then analyze the given part. What is given to you in the problem? Full analysis is needed, how it can be used in the problem. Then, after analyzing the given part, what is the target? What is to be achieved? Analyze that also. So, instead of proving this, can I prove this? Can I prove this? And finally then, decide about the method. If you are having 2 or more methods to solve the question, you have to decide which is the best possible in this case. So, this has to be done during the reading time in good level questions. While reading, you can categorize your questions as easy, average or difficult. So, after categorizing as easy, average or difficult, your writing time starts. When your writing time starts, always start with easy. Then pass on to the average. And finally pass on to difficult and lengthy questions, so that you are not under pressure during the test. So difficult question and lengthy question only at the end. Alright. So
Natural questions may be coming to your mind. हम ये इजी एवरेज डिफिकल्ट क्यों कर रहे हैं? See, इजी एवरेज डिफिकल्ट से हम चाहते हैं कि मैथ्स पेपर में फ्लो बने. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस, जब भी आपका पेपर में मैथ्स में फ्लो बना, आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आए. और जब भी आपने अटक के क्वेश्चन की एक करा, फिर रुका, फिर करा, फिर रुका, वहां पे आपका आउटपुट मैथ्स पेपर में अच्छा नहीं आया. तो इजी एवरेज डिफिकल्ट कैटेगराइज करने का बेसिक बेनिफिट है कि आपका मैथ्स पेपर में फ्लो बने. फ्लो बनेगा, ओनली देन यू कैन गेट द परफेक्ट स्कोर. ऑलराइट, बिकॉज इन दैट केस यू विल हैव sufficient time in the end for difficult questions, and you can try those questions accordingly and get the perfect score. But only obstacle in getting 80 out of 80 in the board paper is number of unforced errors. If you are able to check these errors, only then you will be able to get the perfect score. By now, you must have identified your errors. What type of errors you commit? I broadly categorize the errors in the categories: copy down errors, numerical errors, and logical errors. Say, if you are in a habit of doing copy down error, copy ही क्वेश्चन गलत होता है, तो ऐसे केस में what is the remedial step? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी आप टेस्ट देते हो घर पे या किसी स्कूल में प्री बोर्ड देते हो, आपने ऐसे काम करना है, अंडरलाइन करते हुए पढ़ोगे क्वेश्चंस को, सो दैट पूरी चीज कॉपी डाउन गलत ना हो. अगर कॉपी डाउन गलत हुआ, यू आर बाउंड टू गेट 0 इन दैट क्वेश्चन. ऑलराइट, देन कम्स न्यूमेरिकल एरर्स. Numerical errors are most common. More than 80% of the students commit numerical errors. Now, question is how to reduce the numerical errors. Say, whatever error you commit, you must have identified by now. Whatever errors you commit, say cross multiplication की गलती होती है, स्क्वेयरिंग की गलती होती है, साइन चेंज नहीं होते, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वगैरह. जो भी आपके न्यूमेरिकल एरर है, जहां पढ़ते हो लिख के लगाओगे. जब भी आपने घर में पढ़ने बैठना है, पहले देखो व्हाट टाइप ऑफ एरर्स यू कमिट. अब जब आप काम करोगे, उसी के पैरेलल जब स्टेप आएगा, तो आपको स्लो डाउन होके काम करना है. अब आप कहोगे स्लो डाउन क्यों होना है? अभी देखो बड़ा सिंपल सा वे है. जैसे मैं ड्राइव करके हुए सुबह यहां आया, तो स्ट्रेट रोड पे मेरी स्पीड तेज थी. जब टर्निंग आई तो मेरी स्पीड कम हो गई. क्यों? ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ट्रैफिक इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिस साइड. तो मेरा फोकस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एरर प्रोबेबिलिटी इज मोर. एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, जहां पे आपकी एरर होती है, वहां पे आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा और ज्यादा फोकस से काम करना पड़ेगा, सो दैट वो एरर हो ही ना. दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस न्यूमेरिकल एरर्स. स्लो डाउन होगे, फोकस को बढ़ाओगे, सो दैट देयर आर नो एरर्स. एंड द थर्ड टाइप ऑफ एरर्स आर लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स अब दो वेज में होती हैं. एक तो वो हो गया अनएबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, और you know 2 to 3 methods to solve a question, unable to decide which method to be used to solve the question. Now question is, what is the remedial step for that कि logical error पेपर में ना हो? See, जिस भी चैप्टर में लॉजिकल एरर होती है, अगर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो जस्ट हाफ एन आवर में, भाई कौन कौन सी टेक्निक्स हैं टू सॉल्व, पहले हम इससे ट्राई करेंगे, ये नहीं होगा तो इससे करेंगे, फिर नहीं होगा तो इससे करेंगे. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने इन मेथड्स को अप्लाई करना है. लॉजिकल एरर हो गई नहीं.
So if somehow you are able to reduce your errors, only then you are bound to get 80 out of 80 in the board exam. Alright. Now I will take a practical example. मैं इसी वीडियो में एक पेपर डिस्कस करूंगा प्री बोर्ड 3 conducted by RM classes. Now, I'm not going to discuss all the questions. I'm going to discuss only good level questions of the paper. What about the remaining questions? I will provide you the complete solutions of the remaining question. आप डाउनलोड कर सकते हो. All right? तो इसी वीडियो में अब हम पास ऑन हो रहे हैं. We are going to discuss how to try some good level questions. Now I start with a good level assertion reason question from pre-board 3. It's question number 19. Assertion. What it says, minus 3 comma 6 is not the solution of this. So it does not lie on the line representing the equation. This is your assertion. Reason. Each solution x comma y of a linear equation corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. Alright. Now I have to try this question. In assertion reason question, first of all, I have to check the truthfulness of the assertion independently, whether this is a true statement or not. Then I have to check truthfulness of the reason independently, this is a true statement or not. After checking truthfulness of both assertion and reason, what I will do? I have to select the options A, B, C, D. In both A and B, you will find both assertion and reason are true. Whereas in C, you will find assertion is true, reason is false. In D, you will find assertion is false, reason is true. Alright? So let's check. First of all, he says, minus 3, 6 is not the solution of this. Minus 3 comma 6. I have to check whether it is a solution of this or not. So what I have to do? I have to substitute minus 3 in place of x and 6 in place of y and see left hand side equal to right hand side or not. When I place 3 into minus 3 plus 7 into 6. Is this quantity equal to 26? No. So this does not satisfy the equation. Therefore, this is not the solution. So what I proved, minus 3, 6 is not the solution of the equation. Right? So, since it is not the solution, it does not lie on the straight line representing the equation. So you have to tell whether this statement is true or not. Now, you studied when you draw the graph of linear equations, जो line बनती है, this is the complete solution set. Means ये सारे पॉइंट एक्चुअली क्या हैं? सॉल्यूशंस. कोई भी पॉइंट है तो वो सॉल्यूशन है और कोई भी सॉल्यूशन है तो वो एक्चुअली पॉइंट है ऑन द लाइन. So he says this is not the solution, so it does not lie on the straight line, is definitely a true statement. Assertion true. All right. Now I will check truthfulness of the reason. So what is the reason? Each equation, each solution x comma y of a linear equation corresponds to a point on the line
and vice versa. Actually, this statement is a result from class 10th text. ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए. एक्चुअली हर एक जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू ए पॉइंट. अभी मैंने बताया था, एंड एवरी पॉइंट हियर will correspond to a solution. So this is basically a result. So this is again a true statement. Reason true. It means your answer to this question is either A or B. C और D नहीं हो सकते, जहां पे false बीच में आ रहा है. Both assertion and reason are true. Now, I will have to see whether reason is the correct explanation of this or not. If it is correct explanation, answer is A. If it is not the correct explanation, answer is B. Now, how to check? See, here he says clearly, each solution is a point on the line. Each solution is a point on the line, and every point is a solution. इसका मतलब है उसने बिल्कुल क्लियरली बता दिया, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर पॉइंट यहां पे होगा, तो नेचुरल है इट डज नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. तो रीजन क्लियरली explains the assertion and correctly explains the assertion. So I will say A is the correct answer. So this answer to this question 19 is A, because reason correctly explains the assertion. Now I pass on to question number 20. Assertion. If the coordinates of the midpoints of the sides AB and AC of a triangle ABC are -3, 7 and 13, -5 respectively, then BC equal to 20 units. And reason are the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. All right. Again an assertion reason question. I have to independently check truthfulness of assertion and truthfulness of the reason. Then I will decide about the further course of action. Let's start. Let's check truthfulness of the assertion. If the coordinates of the midpoints of the sides AB and AC. For this, I will draw a rough sketch. This is AB, and this is C. What he says, if the coordinates of the midpoint of AB का midpoint D, and this is given to be -3, 7, and this is E, which is given to be 13, -5. All right. Then length BC equal to 20 units. He's talking about the length of the side. If you remember carefully, you have already studied midpoint theorem and its corollary. Class 9th में पढ़ा हुआ है under quadrilaterals. ठीक है? Line joining the midpoints of any two sides. This line segment joining the midpoints of any two sides D is parallel to BC and is half of it. अगर इसकी लेंथ निकाल लें D की, तो BC की लेंथ तो पता लग जाएगी. So let's find the length D. D की लेंथ कैसे निकालेंगे? Using distance formula by x1, y1, x2, y2. Distance between the 2 points. Square root of x2 minus x1. So 13 plus 3, 16 square plus -5, -7, -12 square. And this gives you
What is 16 squared? 256. And what is minus 12 squared? 144. Square root of this is equal to 400, means D is 20. Now this length DE turns out to be 20. Length of DE turns out to be 20. So what can you say about the length BC? What I said, DE is half of BC, or BC is double of DE. So BC equal to double of DE means twice of this, 40. What BC is given? 20. So is it a correct statement? No. So assertion is false. Assertion false. All right. Is this clear? Now, if you check your answers, सिर्फ एक ही आंसर है जिसमें assertion false है, बाकी सब में assertion is always true. तो आप straight away आंसर किसको मार्क कर सकते हैं? डी को. डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि assertion false हो गया. अब कहेंगे आप चेक ही करवा दो. चेक कर लेते हैं. भाई assertion तो false हो गया, अब आ गया रीजन. हमने देखना है इंडिपेंडेंटली रीजन इज ए ट्रू स्टेटमेंट और नॉट. एक बात बताओ, ये तो रिजल्ट है. कौन सा रिजल्ट है? मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स करोलरी. अब मिड पॉइंट थ्योरम एंड करोलरी तो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है. ट्रू स्टेटमेंट. सो रीजन इज ट्रू, assertion is false, reason is true, so the answer is D. So D is the correct answer for this question. Now I pass on to question number 23. What it says: consider two linear equations, 2x plus 4y minus 5 equal to 0 and 3x plus 5y minus 7 equal to 0. Write a linear equation of your own such that the linear equation taken in pairs. It means एक इक्वेशन आपने लिखनी है. अब पेयर कैसे बने? एक इक्वेशन आपने लिखी और एक गिवन, एक इक्वेशन आपने लिखी एक गिवन, और इन दोनों का दे आर टेकन इन पेयर्स हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. हर एक पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट? बट देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस in two unknowns. अब तीनों ले लें, this और जो आप लिखोगे they have no solution at all. Of course you have to show the working. Subjective question starts, right? So first of all, जितने अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे. जल्दी में नहीं पढ़ना. What he says, write a linear equation so that linear equations taken in pairs have a unique solution. अब इसके आगे भी करना है. आगे का बात बाद में, पहले इसको कर लें. कैसे? Write a linear equation. अपने आप एक linear equation in two unknowns लिखो. अब कैसे लिखनी है? Each pair have a unique solution. तो पहला पेयर ले लें. अच्छा एक बात बताओ, if this is the system of equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, when this pair have a unique solution, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So you have to write of your own a linear equation such that this condition is satisfied. अब देखो, आसान लिखेंगे. यहां जैसे 2x है तो मैंने लिख लिया x. अब यहां 4y है, यहां लिख लो y. बताओ a1 by a2 b1 by b2 के बराबर होगा भी नहीं. कैसे निकालें? a1 तो है 2, a2 कितना है? 1, 2 by 1 and
v1 कितना है 4, v2 कितना है 1, v1 by v2 4, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो अपने आप जब लिखना है सोच के लिखना है। अब मैं कुछ नंबर लगा देता हूं, से -3 इक्वल टू 0। तो मैंने अपने आप एक लीनियर इक्वेशन लिखी। अब आप जस्टिफाई कर दो। वो कहता है ना शो दी वर्किंग, सिर्फ लिखनी नहीं है, आपको वर्किंग भी शो करनी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपको शो क्या करना है भाई, आपने ये पेयर बनाया 2x + 4y - 5 = 0। ये तो खुद लिखी, ये पहले है। अब यहां पे शो करना है दिस पेयर हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर पेयर मैंने ऐसे लिख दिया तो a1 by a2 कितना आएगा 1/2, b1 by b2 कितना आएगा 1/4, नॉट इक्वल। ये है वर्किंग शो हो गई। सो दिस पेयर हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। व्हाट ही सेज टेकन इन पेयर्स। अब और भी तो पेयर बनेगा, कैसे? जी आ गई। तो हमारी इक्वेशन है x + y - 3 = 0, और यहां गिवन है 3x + 5y - 7 = 0। अब बताओ, इज दिस पेयर हैव अ यूनिक सॉल्यूशन? लिख दो सेम लाइंस पे, a1 by a2 1/3, b1 by b2 1/5 इक्वल है? नहीं। तो इसका भी यूनिक सॉल्यूशन हो गया। बट यू हैव टू राइट द स्टेप्स जो मैंने बोले हैं, राइट? क्या टेकन इन पेयर्स में पेयर खत्म हो गए? नहीं। एक पेयर तो क्वेश्चन में गिवन है, वो भी लेना पड़ेगा। 2x + 4y - 5 = 0, 3x + 5y - 7 = 0। अब फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन प्रूव करना है। निकालो a1 by a2 2/3, here it is b1 by b2 4/5। बोलो यूनिक सॉल्यूशन? यस, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो यूनिक सॉल्यूशन। बताओ, क्या हमने ये चीज प्रूव कर दी? राइट अ लीनियर इक्वेशन सच दैट लीनियर इक्वेशन टेकन इन पेयर्स हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यहां तक मैंने कर दिया भाई। तीनों पेयर्स का, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, यूनिक सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। नाउ ही वांट्स there is no solution for the system of 3 linear equations and 2 unknowns। अभी एक पार्ट और भी है। अब वो कहता है तीनों इक्वेशंस इकट्ठी ले लो। फर्स्ट जो तुमने लिखी, जो आपको दी हुई है 2x + 4y - 5 = 0 and 3x + 5y - 7 = 0। आपको शो करना है दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तुम कहोगे ऐसा तो पढ़ा ही नहीं। देखो, सॉल्यूशनों में सिस्टम का क्या मतलब है? क्या मतलब है? दैट वैल्यू ऑफ x एंड y जो इसमें तीनों में पुट करें, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें पुट करें तो भी 0 आए, इसमें पुट करें तो भी 0 आए, इसमें पुट करें तो भी 0 आए। ठीक है, एक काम करते हैं, हमको ये तो आता ही है इन दोनों को सॉल्व करना। फर्स्ट टू को कैन यू सॉल्व द सिस्टम? करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड x एंड y। अब ये आपको निकालने आते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। अलजेब्राइक मेथड, ग्राफिकल मत लगाना, लंबा हो जाएगा, राइट? अब जब आपने सॉल्व किया x और y की वैल्यू तो आ गई, देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन निकल आया। अब सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम का मतलब होगा कि वो इसको सेटिस्फाई करे। अगर करेगा तो सिस्टम का सॉल्यूशन है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब आपने कुल मिला के क्या करना है? ये x और y जो निकाले इसमें पुट करोगे, करेक्ट, और देखोगे इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा इक्वल टू 0, तो यहां से प्रूव हो जाएगा ये जो x और y की वैल्यू निकली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वो तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। और कोई सॉल्यूशन तो पहली दो इक्वेशंस का ही नहीं है। इसका मतलब है दिस सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन।
ये सारा लिखना पड़ेगा। अब जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, इसको कब करना चाहिए? पेपर के एंड में। क्यों? मैं ये मानता हूं इजी नहीं है, एवरेज लेवल का है, बट इसको एवरेज पे नहीं करेंगे, डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चन के साथ करेंगे। रीजन, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रूफ इन 2 मार्क्स। आपका टाइम लगेगा। अगर आप इसको एंड में नहीं करोगे, दैट विल इफेक्ट द आउटपुट इन द टेस्ट। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट, come to such questions only in the end. Now I pass on to question number 25. One of the steps in the following list contains an error. Identify it and explain what is wrong. These are the steps. Step number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One of the steps contains an error. आइडेंटिफाई करना है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है। ऑलराइट, चलिए हमने स्टार्ट किया x इक्वल टू 2 से, एंड x को लिख लिया 3x माइनस 2x। डेफिनेटली दैट इज इक्वल टू x। दिस इज करेक्ट। नाउ ट्रांसपोज कर दिया माइनस 2x की टर्म को राइट साइड पे, 3x इक्वल टू 2x प्लस 2। करेक्ट। दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर ऐड किया, सेम क्वांटिटी ऐड करी, इक्वालिटी आएगी। करेक्ट। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इट मींस माइनस 10 ऐड किया इधर। क्या माइनस 10 इधर ऐड किया? यस। 2 माइनस 10 इज माइनस 8। करेक्ट। इसकी फैक्टराइजेशन करी। करेक्ट। देख लो, इसकी फैक्टराइजेशन करी। करेक्ट। यहां तक कोई एरर नहीं है टिल स्टेप 6। ऑलराइट, अब चलिए आगे। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डिड, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ तो आ गया x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 4। x माइनस 2 और x माइनस 2 को कैंसिल किया। देखिए x किसके बराबर है? 2 के। x माइनस 2 किसके बराबर है? 0 के। क्या 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हो? नो, आप 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते। दिस कैंसिलेशन इज रॉन्ग। तो स्टेप 7 में जब पहुंचे कैंसिल करके, स्टेप 7 इज रॉन्ग। तो एरर आइडेंटिफाई हो गई 7th स्टेप में। अब एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग। इनफैक्ट मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा तो कर ही दिया पहले। भाई एक्सप्लेनेशन के अंडर क्या जाएगा? इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो कैंसिलेशन इन Step 6 not allowed. Step 6 से 7 पे हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये कैंसिलेशन गलत है। That's why the error. Right? This is usually a common mistake. अब एक चीज समझ लो अच्छे से मैथ्स में। If AB is equal to AC, A से A कैंसिल हो सकता है प्रोवाइडेड A नॉट इक्वल टू 0। कैंसिलेशन लग सकता है जब ये क्वांटिटी क्या हो? नॉन जीरो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है, सॉल्व x स्क्वायर इक्वल टू x। राइट, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखा x इंटू एक्स, एक x काट दिया, x इक्वल टू 1। इज दिस सोल्यूशन करेक्ट? नो। क्यों? हमने x से x को कैंसिल कर दिया और इक्वेशन में x तो 0 हो सकता है।
So how to solve this equation? Correct way of solving the equation is x square minus x equal to 0, x common, x minus 1 is 0. Either x is 0 or x is 1. So there are two solutions of this equation. अगर आप एरर करोगे तो एक सॉल्यूशन गायब हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, ध्यान से. तो कैंसिलेशन लॉ लगाना सीखो. When we cancel the quantities, provided that quantity is non-zero. Right. Now I pass on to question 29. Find the pairs of three-digit numbers such that their sum is 444 and their SCF is 37. Show your steps. So we are interested in finding pairs of three-digit numbers. भाई जितने भी pairs हैं, we have to find all the pairs. All right. We have to find the pairs of three-digit number whose sum is 444. Let the two numbers be x and y. Their sum, x plus y, is given to be 444. Then he says, their SCF means SCF of x and y. So x may be 37 present होगा, y की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 37 प्रेजेंट होगा. अब इसके साथ कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, से इंटू आर, से इंटू एस. What can you say about R and S? See, SCF of these two numbers is 37. There should not be anything common between R and S. R and S are co-prime. All right? Okay. Now, condition is x plus y equal to 444. What I do, I put the value of x and y from here in this equation. Right? X is 37R. 37R plus 37S equal to 444. 444. All right? So, 37 common, R plus S, change the side of 37. What is the answer? 12. R plus S is 12. If we are interested in finding the pairs, x and y, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? R. R ऐसा होना चाहिए, ये 3-digit नंबर बने. S ऐसा होना चाहिए, ये भी 3-digit बने. And R and S should be co-prime to each other. Now, let's start writing. He says R plus S should be 12. बहुत कम possibilities है. भाई, first possible value, R की 1, S की 11. If R is 1 and S is 11, sum is 12. But if R is 1, substitute here, X is 37 into 1. Is 37 a 3-digit number? No, this is not possible. Now, next, I pass on to the next. R is 2, S is 10. Here, R and S should be co-prime. Is 2 and 10 co-prime? No. Question does not arise at all. Second condition हमने चेक ही नहीं करी R को पुट करके. यही नहीं satisfied. R and S should be co-prime. Next. 3 and 9. They are not co-prime. 4 and 8. Again not co-prime. 5 and 7. Co-prime. But क्या ये आंसर होगा? देखते हैं. R and S are co-prime. 5 and 7 are co-prime because their SCF is 1. इन दोनों का HCF, highest common factor, is 1. So they are co-prime. All right. Now let's try to find out X. X is 37 into R. 37 into 5. कर लो find out. 185. Right.
चलो y फाइंड आउट करें. y इज इक्वल टू 37 इंटू 7. 7 7 तो 49, 4 7 3 21 and 4. So one pair of numbers is 185 and 259. अभी हमको क्वेश्चन आगे करना है. क्या पता आगे पेयर हो. अब सम है 12, नेक्स्ट क्या होगा 6 6. ये तो प्राइम है. नो. अच्छा नेक्स्ट क्या होगा 7 + 5. अब हमने तो पेयर लेना है और पेयर तो यहां पे 5 और 7 वाला कवर तो हो गया. वही तो 7 और 5 वाला पेयर है. सिंस पेयर इज सेम हम दोबारा से नहीं करेंगे. तो आगे हमने जाना ही नहीं है इनफैक्ट. तो द ओनली पेयर ऑफ नंबर्स इज 185 and 259. All right. Pass on to question 35. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram with XY is straight line parallel to AB. XY is parallel to AB. Parallelogram है ये. Right. All the three parallel. Right. Cutting AD and BC in X and Y. X, Y. This is very clear in the figure itself. अब चले आगे. H and K are points on XY. H and K are any points on XY. कहीं H ले लिया, कहीं K ले लिया. All right. AH and BK produced. AH produced and BK produced. Meet in the point P. This is the point P. All right. Next. DH and CK produced. DH. This is DH. And this is CK. All right. These two meet in this point. Which is the point? Meet in Q. It is slightly below AB. All right. Now we are interested. Prove PQ is parallel to BC. We are interested in proving this PQ is parallel to BC. So we are interested in proving this result. Now, in case of geometry, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए ड्राइंग द करेक्ट डायग्राम. अगर आपने डायग्राम बना लिया दिस इज वेरी गुड चांस कि आपका क्वेश्चन हो जाए. ऑल राइट. डायग्राम बन गया. वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग पी क्यू पैरेलल टू बीसी. दो लाइंस को पैरेलल करना है. पैरेलल प्रूव करने के मेथड्स बोलो. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अब जैसे ये दो लाइंस हैं और पीबी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाए इक्वल. तो लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएंगी. जो एंगल शो किए हुए हैं अगर ये इक्वल हो गए तो क्वेश्चन हो गया. राइट. तो हमारा एम क्या रहेगा. एम रहेगा व्हाट इज अवर एम. एंगल QPB equal to CBP. We are interested in proving these two angles to be equal. QPB, CPB, CBP. All right. This is CBP. Please note. All right. अब वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग द टू एंगल्स टू बी इक्वल. वैसे पैरेलल लाइन के और भी मेथड्स होते हैं. कौन से. अगर अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम बन जाए. यहां कहां बन रही है और कोई पैरेललोग्राम नहीं बन रही. ठीक है. और भी होता है पैरेलल. आपको पता है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. मिड पॉइंट थ्योरम वहां से भी होता है. बट
यहां पे ऐसे कोई मिड पॉइंट्स वगैरह भी नहीं दिए हुए, एच और के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। कैसे पॉइंट्स है? एनी पॉइंट्स, कहीं भी ले सकते हो। तो इन जनरल आपको लेने पड़ेंगे, राइट। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमने इन दो एंगल्स की इक्वालिटी करनी है। एंगल्स की इक्वालिटी आपके कोर्स में क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। और क्या है कोर्स में? थोड़ा सा सर्कल्स, टेंजेंट्स वाला। अब नेचुरल है कि दिस क्वेश्चन शुड बी डिपेंडेंट ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स। किसी ढंग से मैं ये प्रूव कर दूं हमारी ये ट्रायंगल पी के क्यू एंड बी के सी, सी नोट पी के क्यू, नोट द ट्रायंगल। किसी ढंग से ये दो ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो जाए जो मैंने शेड करी है? सिमिलर। ये हमारा एम है। जैसे ही सिमिलरिटी हुई, भाई हमारा एम है इनको सिमिलर प्रूव करना। जैसे ही इन दो ट्रायंगल को सिमिलर किया, क्वेश्चन हो जाएगा, एंगल्स की इक्वालिटी पे चले जाएंगे, सीपीसीटी। वहां से लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अब इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलरिटी के क्राइटेरिया, भाई एक चीज तो आप कह ही सकते हो, एंगल पी के क्यू इज इक्वल टू एंगल बी के सी। बोलो कौन से एंगल्स हैं? बी के सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स तो इक्वल है, भाई दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पर हमको तो प्रूव करना है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। अब नेचुरल है कि एंगल ही प्रूव करना है, तो हम ए सिमिलरिटी रूल पे तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब है अगर ट्रायंगल सिमिलर करनी है तो हमारे को कौन से रूल का यूज करना पड़ेगा? SAS, दिस इज अवर एम। इसको कहते हैं हम रिफाइनमेंट ऑफ द टारगेट। भाई अगर ये सिमिलर हो जाए और वो भी SAS रूल से, तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है। मतलब ये सारा चल रहा है एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, प्रूफ इसके बाद डेवलप होगा। ये एनालिसिस आप रफ में करते हो, तब आप एक गुड लेवल क्वेश्चन का प्रूफ लिखते हो। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम ट्राइंगल पी के क्यू, भाई शेडेड ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल दूसरी शेडेड ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करें। मतलब अब हमने SAS रूल से करना है, तो इसका मतलब है हमारा एम फिर सेट हो गया। क्या हो गया? पीके बाई के बी इज इक्वल टू क्यू के बाई के सी। अगर ये प्रूव हो जाए तब लगेगा SAS रूल। क्यों? दिस ओवर दिस ओवर दिस और इंक्लूडेड एंगल बराबर है, तो SAS रूल से होगा। तो मतलब एम हमारा फर्दर रिफाइन हो गया कि हमको प्रूव करना है पीके बाई के बी इक्वल टू क्यू के बाई के सी। अब पीके बाई के बी, क्यू के बाई के सी कैसे अचीव करें? देखो, अगर आप ध्यान दो, हमारे को पहली गिवन चीज है ये लाइन XY इज पैरेलल टू AB। इसका यूज करूं, मैं एक ट्राइंगल लिखता हूं PHK एंड PAB। बोलो, व्हाट कैन यू से अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स PHK and PAB? What can you say? बोलो, these two triangles are similar. Reason, एंगल P तो कॉमन है, लाइंस पैरेलल की वजह से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल।
तो क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसीलिए ट्राइंगल PHK इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। बट आपको बोर्ड पेपर में स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। इस सिमिलरिटी के स्टेप्स क्या होंगे? एंगल P कॉमन एंड देन एंगल PHK is equal to angle PAB. So these two triangles are similar by AA similarity rule. AA similarity rule से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। यहां से हमारे पास रेशियो आ गई PK, फर्स्ट थर्ड PB। अब हम इधर भी जा सकते हैं PH by PA, हम इधर भी जा सकते हैं HK by AB। मैं प्रेफर करता हूं दिस इज इक्वल टू HK by AB को। क्यों? हमको दूसरी ट्रायंगल में भी तो जाना है। वैसे आप तीसरा साथ में लिख सकते हो, जो चाहिए होगा वो उठा लेंगे। ऑल राइट, चलिए, तो PK by PB किसके बराबर है? HK by AB। HK सेकेंड एंड थर्ड, AB सेकेंड एंड थर्ड रेशियो। ऑल राइट, चलिए आगे। देखो, हमने इस रेशियो को इन्वॉल्व तो कर लिया PK by PB। अभी हमको इन्वॉल्व करनी है QK by QC। ये कैसे इन्वॉल्व करें? ABCD से पैरेललोग्राम, इसका मतलब है AB और CD से पैरेलल है, राइट। ऊपर से XY AB के पैरेलल है, तो CD के भी तो पैरेलल है, तो XY पैरेलल टू CD। XY, this is the line parallel to CD, or you can say DC, parallel to DC, if you are more comfortable with this. All right. Again, look at, सिर्फ CD की बात कर रहा हूं या DC की बात कर रहा हूं, और दूसरी किसकी बात कर रहा हूं? XY की। ये तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे ट्राइंगल बन रही है ऐसे। कौन सी ट्राइंगल्स? QHK ट्राइंगल, QHK एंड ट्राइंगल QDC। बोलो, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस टू ट्राइंगल्स? ये लाइन इसके पैरेलल है, फिर वही की वही चीज, एंगल Q कॉमन, एंड दूसरी चीज ये एंगल इसके इक्वल। By A similarity rule, exactly on the same lines, triangles are similar. तो ये दो ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं QK by QC, QK by QC। क्यों? फर्स्ट थर्ड इक्वल। अब नेचुरल है, यहां मैंने लिया था HK by AB, यहां भी मैं HK को इन्वॉल्व करूंगा, HK आ गया, HK सेकेंड एंड थर्ड बाय DC। हाँ जी, QK by QC इक्वल टू HK by DC, राइट। अब तुम कहोगे क्या बेनिफिट हुआ? देखो, HK by AB, HK by DC, DC तो AB के बराबर है। अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम 1 and 2। बोलो, क्या बोलोगे? PK by PB इज इक्वल टू QK by QC। अगर आप देखो, काफी हद तक प्रूफ तैयार है। हाउ द प्रूफ विल वर्क? हाँ जी, देखो, हमने कहा PK by PB इज इक्वल टू QK by QC। मेरे को तो जाना है PK by KB में, PK by KB। अब KB कैसे लाऊं? ये तो आपको आता है, एनसीईआरटी बुक में भी बहुत बार दिया हुआ है। इसको रेसिप्रोकेट कर दो। इफ द टू रेशियोज आर इक्वल, रेसिप्रोकल्स आर इक्वल। अब क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट 1। आ गई रेशियो, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ द साइड्स। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट 1 किया, आपको रेशियो मिल गई, कौन सी? PK by KB इक्वल टू QK by QC।
जैसे ही आपको ये रेशो मिली, जो एम है ये पूरा हुआ, राइट। अगर ये एम पूरा हुआ तो ये ट्राइंगल्स क्या हुई? सिमिलर। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो सीपीसीटी, ये दो एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। यही एम था हमारा, दो एंगल्स को इक्वल करना, कर दिया। नहीं, इसके आगे भी लिखना पड़ेगा। हमारा एम था लाइंस को पैरेलल प्रूव करना, हमने तो ये रीडिफाइन करके लिखा था। एंगल्स इक्वल हो गए। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स। इफ टू लाइंस are such that there is a transversal between them and the alternate angles are equal, lines will be parallel. So in this way we can complete the proof. But ये एम्स हैं, ये रफ वर्क है, एक्चुअली प्रूफ आगे कंप्लीट होगा। जो यहां लिखा हुआ है वो इसके नीचे आएगा। तो जब हम ये मन में करते हैं तभी तो प्रूफ डेवलप होता है। तो इन प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री सीधा प्रूफ नहीं आएगा, आपको अपने एम को रीडिफाइन करते हुए चलना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन अचीव द टारगेट। सो इन ए गुड लेवल ज्योमेट्री क्वेश्चंस, डायग्राम बनाना, फिर एम्स को सोचना आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डेवलपिंग द प्रूफ। दिस इज a 5 marks क्वेश्चन। एंड आपको या ये करना था, और में एक और दिया हुआ है, दूसरा जो है वो सर्कल से है। तो देख लिया आपने सिमिलरिटी का किस टाइप का क्वेश्चन। अब इसे सेकंड लेवल क्वेश्चन, इसे गुड लेवल क्वेश्चन, सोचोगे तो होगा, स्टेप सोच के करना है। ऑलराइट, I pass on to the or part of question 35. Both the parts are good level. So or part. A man standing at O on the seashore. Is the seashore? Man is standing at this point, observes two stationary boats. ये C है, एक बोट है P, एक बोट है Q. Line through them making an angle of 60 degree with the shore. Line through them OQ makes an angle 60 degree with the shore. This angle is given to be 60 degree. Diagram is given to you, so no problem at all. In questions where diagram is given, lot of help हो गई है, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए, On walking along the shore a distance of 100 meter to A. यहां से वॉक किया A तक, डिस्टेंस 100 मीटर, यहां पहुंच गए। He finds the line segment joining P and Q subtends an angle of 60 degree. Line segment through P and Q subtends an angle of 60 degree. कौन सा एंगल 60 है? एंगल PAQ is given to be 60 degree. All right. Then, on walking further a distance of 200 meter from A, he walks further to the point B. Distance is 200 meter. यहाँ पहुंच गया. He is at the point B. Right. Now, what he says, on walking further a distance of 200 meter along the shore to B, he finds PQ subtends the angle of 60 degree at his eye. अभी भी PQ इस पॉइंट B पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री। एंगल PBQ is 60 degree. All right. Now we are interested in finding the distance between the boats P and Q. क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स P and Q. तो आपको कुल मिला के लेंथ PQ फाइंड आउट करनी है। PQ टू बी फाउंड। यस, क्वेश्चन मार्क। अब हाउ टू फाइंड PQ? ऑल राइट, वी हैव टू यूज द गिवन। ऑब्जर्वेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ज्योमेट्री। डायग्राम इज गिवन। यू लुक एट इट केयरफुली, ये तो बहुत सिंपल चीज है। क्या है? PQ सेगमेंट A पे बना रहा है 60 डिग्री, PQ 60 है, PBQ भी 60 है,
PQ सेगमेंट बी पे भी बना रहा है। तो जो PQ सेगमेंट है, ये है PQ सेगमेंट, ये A ये B दोनों पॉइंट किस पे है, एक ही साइड पे है ऑन द लाइन कंटेनिंग PQ, और P A और B पे सेम एंगल बन रहा है। बोलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट्स P A B Q? बोलो, पॉइंट्स आर concyclic. They lie on a circle. concyclic पॉइंट्स है। कहां से? देखो, जब सर्कल में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, उसका कन्वर्स भी तो ट्रू होता है। अब ये सेगमेंट है PQ, यहां पे एंगल और यहां पे एंगल सेम बना रहा है, इसका मतलब है PABQ ये पॉइंट्स कैसे हैं, concyclic, they lie on a circle। देखो, जब भी ऐसी चीज आए, आप रफ में सर्कल जरूर बनाओगे, तभी आपको कुछ दिखेगा सर्कल की हेल्प से। राइट, सर्कल बना लिया। अब आपको दिखना चाहिए इस सर्कल से फायदा क्या उठाए। वैसे तो हमारे को एक ना रिजल्ट सा याद है, जो सिमिलरिटी से बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। OA इंटू OB इज इक्वल टू OP इंटू OQ। OA इंटू OB इक्वल टू OP इंटू OQ। पर इस रिजल्ट का फायदा ही नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होता? रीजन है, OA OB तो पता है ना, OP पता है ना, OQ पता है। क्योंकि ये पता नहीं है, इसीलिए इस वे में क्वेश्चन आगे नहीं चलता। तो जरूरी नहीं है कि जो भी रिजल्ट तुमको आता हो वो लग जाए क्वेश्चन में। हमारे ध्यान में तो आया, हम ये लगा देते हैं, बट इसका तो कोई फायदा ही नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं। फिर कैसे करें? सर्कल है, जैसे ही सर्कल मिला, देखो AP एक कॉर्ड है। अच्छा बताओ, यहां पे एंगल और यहां पे एंगल क्या होगा, सेम। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों? AP इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। अब मेरे हिसाब से कम आपको OQ दिख जानी चाहिए। नहीं दिखी, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, ट्राइंगल QAB कैसी है? नहीं देखी। QAB का ये वाला एंगल QBA, एंगल QBA बोलो कितने डिग्री का, 60 प्लस अल्फा, 60 डिग्री प्लस अल्फा। अच्छा QAB भी निकाल लो। QAB ये एंगल, अब ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ OAQ। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, 60 प्लस अल्फा। व्हाट कैन यू से अबाउट द ट्राइंगल QAB? नाइस ट्राइंगल। कौन सी? आइसोसेलिस। यहां से बड़े आराम से प्रूव हो रहा है QAB इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। जैसे ही क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल मिले, आइसोसेलिस ट्राइंगल मिले, आपको एक चीज जरूर करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन AB। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया R। Draw QR perpendicular on AB। अब अगर ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल में OQ निकालना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आती है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है। राइट एंगल ट्राइंगल जहां भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो सकता है इन ट्राइंगल OQR। ढूंढो OQR। OR
ओवर ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ 60। हाँ ये तो पता है 1/2। अब क्या ओ आर पता है? नहीं। आपको तो ए भी पता है 200। हाँ परपेंडिकुलर भी रहा है, ये तो दोनों बराबर होंगे, ये भी 100, ये 100 ये 100। तो बताओ ओ आर किसके बराबर है? 100 + 100 200। 200 बाई ओ क्यू इज इक्वल टू 1/2। तो ओ क्यू इज इक्वल टू 400। तुम कहोगे क्वेश्चन कहां हुआ? बिल्कुल ठीक बात है, बट कुछ तो फाइंड आउट हुआ। हमने ओ क्यू फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। वैसे वो प्रॉपर्टी लगाने की क्या जरूरत है, अब तो वैसे ही कर लेंगे। अब देखो ये डिस्टेंस ओ क्यू आ गया, किसी ढंग से ओपी निकल आए, एम ओपी निकल आए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तुम कहोगे ओपी कैसे निकालेंगे? देख लेते हैं। देखो अब आपको सिमिलर ट्राइंगल दिखनी चाहिए। ढूंढो फिगर में सिमिलर ट्राइंगल्स। मैं मीनवाइल इसको रब कर देता हूं। हाँ जी, ढूंढो सिमिलर ट्राइंगल्स इन द फिगर। हाँ जी, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, ये 60 ये अल्फा, ये 60 ये अल्फा, तो ट्राइंगल ओ क्यू ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू, तो बी पी, ओ पी पी। बोलो ये ट्राइंगल कैसी है? सिमिलर। क्यों भाई? 60 अल्फा अल्फा, कौन सा रूल? ए सिमिलरिटी रूल। बाई ए सिमिलरिटी रूल द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मेरे ख्याल हमारा काम चल सकता है। कैसे? देखो सबसे पहली चीज है, हमारे को ओ क्यू पता है और ओ ए पता है, तो ओ क्यू लगाता हूं मैं। ओ क्यू ओवर फर्स्ट एंड सेकेंड ओ बी इज इक्वल टू, और क्या पता है? ओ ए फर्स्ट एंड थर्ड बाई ओ पी। राइट भाई, ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स प्रोपोर्शनल है, ओ क्यू क्या पता है? निकाल लिया था हमने 400। ओ बी यहां से यहां तक, ये 100 ये 200, बोलो 300 इज इक्वल टू ओ ए 100। तो क्या निकालनी है? ओपी। निकालो ओपी। यस, अगर हम ओपी फाइंड आउट करते हैं, बोलो क्या आ रहा है? यस 75। आपने ओपी फाइंड आउट कर लिया। ओपी ओ क्यू फाइंड आउट किया हुआ था, कितना था? 400। ओ क्यू माइनस ओपी, 400 minus 75, answer is 325 meter. Complete the problem. Not at all difficult. Yes, कर सकते हैं। वो स्पिरिट चाहिए होती है। Yes, I can do it. जो 2 स्टेप या 3 स्टेप के क्वेश्चंस होंगे 5 मार्कर, वहां पे आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। You must have sufficient time to solve them. जब तक टाइम नहीं होगा, जब तक आपका क्वेश्चन नहीं होगा। एंड ज्योमेट्री में ऑब्जर्वेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब तक आप फिगर को ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा आगे कैसे करें। दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ और पार्ट ऑफ 35 क्वेश्चन। In fact, all good level questions I discussed on the board. Now you can see the complete solution. देखो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, डाउनलोड करोगे। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ, आप उसको सॉल्व करोगे,
फिर जो मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं उन सॉल्यूशंस से आप बाकी क्वेश्चंस को चेक करोगे, तब जाके इस पेपर से बेनिफिट होगा। देखो हमारा एम क्या था, हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन क्लास 10 बोर्ड पेपर। अब 80 आउट ऑफ 80 कैसे आएगा? जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, जब तक आप परफेक्टली स्कोर नहीं कर सकते। तो नाउ ऑनवर्ड्स आप एक तो सॉल्यूशंस में अपलोड करा रहा हूं, सॉल्यूशंस देखोगे एंड चेक करोगे कि आपके सॉल्यूशंस करेक्ट हैं कि नहीं। All the best for your board exam. Thank you.